अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वंफ़अना बिमा अल्लमतना व ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। Ameen. Welcome to our lesson number 42, and today inshallah we'll review of the previous lesson. So new lesson with example जो है हमारी finding the present tense verb in the dictionary. That's what we'll do today. Then we'll learn about different kind of the groups. Those like once we know those ayn kalma, right? So there are few groups. So we'll learn about the groups as well, or abwab, and then how to categorize. There are 6 groups. How to categorize them. So it will be easy for us to when we find them. So when we memorize them, those groups will help us to memorize them easily. And then few exercises. We'll go with that. So before we start, remember 3 things as we do always. The language you are learning is beautiful. Enjoy it. It is a language of Allah's beloved, Sallallahu Alaihi Wasallam. So love it as you love him and learn it with the intention of keeping his sunnah alive. It is a language Allah chose for his final revelation. Let it bring you closer to him. So first we'll do a review of previous lessons, some reminders. And here we learned that there are 14, you can say sighas, right? That start with the fa'ala, to fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. And here we learned that past tense does not have any prefix, right? Three root letters, and but it may have a suffix. It may not, or it may have suffix. In 2 cases, it does not have any suffix. But other cases it has a suffix. So past tense there is no prefix, and like this there is no suffix, and there is no suffix here as well. Fa'alat, ta is just only to make it feminine, otherwise there is no suffix. So मुस्ततिर जहाँ पर आपका वो suffix ना हो वहाँ पे आपका डूअर हिडन होता है। तो एंड में जो भी एडिशन होती है वो डूअर की होती है, राइट? तो फाला और फालत में कोई एडिशन नहीं है, तो यहाँ पे दमीर मुस्ततिर है, आपका जो डूअर है वो हिडन है, तो इसलिए वी से इट मुस्ततिर। अदर देन दैट सेम थिंग लाइक फाला अलिफुल इस्नाइन, लाइक ड्यूल, टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाव सेम वाउल जमा, दे मैनी मेल्स। सेम फ़ालता अलिफुल इस्नाइन ड्यूल को शो कर रहा है, बट नाउ इट इज़ फ़ालता, राइट? हुमा के केस में फ़ालना सेम लाइक नून निस्वा, मैनी फीमेल्स को डिनोट कर रहा है, राइट? एंड देन ता इज फॉर यू मेल, देन तुमा, तुमा इज सेम यू टू, tum is you many males, tunna is you many females, right? And then t is for you one female, ta is for you one male, tu is I, and na is we. So that's how you will find out in past the addition are like this. That's what we learned. And then in fi'l mudare, we know this is scale number 2. We learned fi'l mudare ma'lum. So both are ma'lum. Ma'lum means doer is known, and majhul, doer is not known. So we'll learn them later. Those are different scales, but this is fi'l mudare ma'lum where the doer is known. Fi'l mudare present or future. So yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. And we know that present tense always has a prefix, always has a prefix, and those are 4 letters, ataini, like ya, ta, alif or hamza, and noon. These 4 letters, if you see a word starting with these 4 letters, it must be a फेल मुदारे। या था, हमजा, नून, फेल मुदारे वो, ठीक है ना? तो या देख लें सारे वर्ड या था या हमजा या नून से स्टार्ट हो रहे हैं, तो those are all fail. So it must have a prefix, but suffix it may have, it may not have it. Like in this case, like 1 2 3 4 5, in 5 cases there is no suffix. तो जब कोई भी एडिशन ना हो एंड में, लाइक सफिक्स में, तो वहाँ पे डुअर हिडन होता है। ये हमने लास्ट क्लास में अंडरस्टैंड किया था, राइट? तो यहाँ पर आपका है ही, यहाँ पर है शी, यहाँ पर है यू मेल, यहाँ पर है आई, यहाँ पर है वी। एंड अगर नून जबर ना एंड में देख रहे हैं आप, तो उसका मतलब मैनी फीमेल। तो या विद नून जबर ना इज दे मैनी फीमेल, ता विद नून जबर ना यू मैनी फीमेल, राइट? अगर ऊना देखें आप एंड में, लाइक वाओ मैनी मेल, तो या विद वाओ, या विद ऊना दे मैनी मेल, ता विद वाओ यू मैनी मेल, राइट? अगर आप आनी देख रहे हैं, लाइक अलिफ, दैट इज फॉर ड्यूल, टू। तो ऑल लाइक अलानी, लाइक यफ अलानी, आनी, 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 टू।
तो या के साथ आनी, दे टू मेल, देन दे टू फीमेल, यू टू मेल, यू टू फीमेल। और अगर आप या देख रहे हैं, सिंपल लाइक या विथ दैट यू वन फीमेल, लाइक तफ़ालीना, तो दिस इज दिस या वी आर टॉकिंग अबाउट। ता के साथ जो या है तफ़ालीना, तो ये है आपका यू वन फीमेल, राइट। ये हमने लास्ट क्लासेस में सब में अंडरस्टैंड किया था। नाउ थोड़ा सा हम पास्ट में देखते हैं कि डिक्शनरी के पास्ट में हमने कैसे डिक्शनरी को इस्तेमाल किया था पास्ट टेंस फाइंड आउट करने के लिए, फिर हम प्रेजेंट में इंशाल्लाह मूव कर जाएंगे। तो बिफोर गोइंग टू दैट, वी नो दैट कि जो अरेंजमेंट है अरेबिक डिक्शनरी या हैंड्स डिक्शनरी, लाइक सम डिक्शनरी इज नॉट बेस्ड ऑन रूट लेटर, बट द वन दैट वी आर फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन रूट लेटर्स। तो वर्ड्स आर अल्फाबेटाइज्ड अकॉर्डिंग टू रूट लेटर्स, नॉट एडिशंस, नॉट एडिशन और चेंजेस। तो कोई आपको एडिशन या चेंजेस जो पीछे में मैंने भी एक्सप्लेन किए डूअर्स की, डिक्शनरी में आपको नहीं मिलेंगी। डिक्शनरी में आपको सिर्फ और सिर्फ रूट लेटर मिलेगा, और वो भी अल्फाबेटाइज्ड है बेस्ड ऑन रूट लेटर्स, राइट। सो लाइक काताबा, तो काताबा के लास्ट जो काफ है, तो काफ इट विल कम वे आफ्टर लाइक अलिफ बा ता सा जीम ऑल दोज, राइट। तो अल्फाबेटाइज है आपकी रूट लेटर के साथ। और आपको अगर एक वर्ड ढूंढना है, लाइक एक वर्ब ढूंढना है, फेल, या इवन एक नाउन भी ढूंढना है अगर, तो आपने उसके रूट लेटर्स फाइंड आउट करने हैं। कोई भी जो जो भी एडिड लेटर्स हैं उन सबको आपने रिमूव करना है। चाहे आप एक इस्म को ढूंढना चाह रहे हैं, चाहे आप एक फेल को ढूंढना चाह रहे हैं, आपने एडिशंस को रिमूव करना है सारी, और रूट लेटर्स निकालने हैं, हुरूफुल असलिया जिसे बोलते हैं, और फिर उसको जाके डिक्शनरी में देखना है। ठीक है। तो पास्ट टेंस के लिए क्या किया हमने, तो पास्ट टेंस, द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ रूट लेटर कम्बिनेशन इन हेंस वेयर इज द बेसिक पास्ट टेंस। तो जब आप रूट लेटर्स निकाल लेंगे, तो वो जब आप व्हेन यू गो एंड फाइंड इन डिक्शनरी, जो भी आपको फर्स्ट अकरेंस मिलेगी बिल्कुल पहली, कि एक एक वर्ड्स के कम्बिनेशन की एक से ज़्यादा अकरेंस हो सकती हैं, तो जो भी फर्स्ट अकरेंस होगी वो आपका पास्ट टेंस वर्ब होगा, बेसिक पास्ट टेंस वर्ब होगा। ठीक है। और ऑलराइट, सो दिस ये हमने लर्न किया था लास्ट टाइम। रूट लेटर डिस्प्ले शोन इन अरेबिक विदाउट वॉवल, किस तरह से शो होता है वो, जो फर्स्ट अकरेंस होगी उसमें वॉवल या हरकत नहीं होंगी, विदाउट हरकत होगी, लाइक इस तरह लिखा हुआ होगा, जैसे अगर कतबा है तो इस तरह लिखा हुआ होगा, नो हरकत। लेकिन उसके बराबर में ही फिर उसकी ट्रांसलिट्रेशन इंग्लिश में लिखा हुआ होगा, लाइक काताबा ऐसे करके लिखा होगा, तो यहाँ से हम पहचान लेंगे कि भाई ये काताबा है, लाइक ये इस तरह से है। ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ लिया था कि इस तरह से विदाउट वॉवल पहले उसकी अकरेंस होगी, और फिर उसके बाद आपकी ट्रांसलिट्रेशन बताएगी हमें कि वॉवल साउंड्स क्या हैं। अच्छा, एक एग्जांपल ये हमने की थी लास्ट टाइम, पास्ट टेंस में हमने फाइंड आउट किया था, लाइक हाउ टू फाइंड पास्ट टेंस वर्ब इफ यू हैव वर्ड अमरता, राइट। तो फर्स्ट क्या करना है, आपने पहला काम, आपने रूट लेटर्स निकालने हैं, तमाम एडिशंस को रिमूव करना है, लाइक अमरता, राइट। तो ये कौन है, ये ता जो है आपका डूअर है, राइट, लाइक यू वन मेल, राइट, अमरता। तो डिटरमिन द रूट लेटर्स, तो आइडेंटिफाई द डूअर इन्फॉर्मेशन, इट इज एडिट, यू वी नो द पास्ट में क्या होता है, सफिक्स में एडिशन होती है, आपकी प्रीफिक्स में कुछ नहीं होती। तो अमरता, फालता, राइट, उसको उस पैटर्न को आपको बिल्कुल पक्का जहन में होना चाहिए, फालता अमरता। दैट्स हाउ यू विल फाइंड आउट कि ये पास्ट है क्या नहीं है। तो ता आपको मिल गया। ठीक है, ता मीन्स यू वन मेल, तो आप उसको हटा के रूट लेटर्स एक्सट्रैक्ट कर लें, अमारा। तो एक्सट्रैक्ट द रूट लेटर्स अमारा, एंड देन फाइंड द फर्स्ट अकरेंस। फिर इसको आप डिक्शनरी में जाके, जब आपको रूट लेटर्स मिल जाएं, तो फिर जाके आपने उसको डिक्शनरी में देखना है। तो फाइंड द फर्स्ट अकरेंस, लुक फॉर द रूट लेटर कम्बिनेशन इन द डिक्शनरी, द फर्स्ट अकरेंस विल शो द पास्ट टेंस वर्ब विद ट्रांसलिटरेशन। और जब आपको मिल जाए तो फिर आप उसकी मीनिंग निकाल लें। तो लाइक अगर आप जाके उसको डिक्शनरी में देखेंगे अमारा को, तो अमारा की मीनिंग आपको मिलेगी कमांड, कमांडेड, राइट। तो देन वी नो दैट मीन्स यू वन मेल, तो देन आप उसकी ट्रांसलेशन बना लें, यू वन मेल कमांडेड। दैट्स हाउ यू विल मेक इट। और फिर ये डिक्शनरी से मैंने लास्ट टाइम शो भी किया था कि इस तरह से देखें, ये जब आप रूटर निकाल लेंगे अमारा, तो देखें यहाँ विदाउट हरकत ये लिखा हुआ है, कोई जो है वो इसमें हरकत नहीं है, कोई वॉवल नहीं है, लेकिन इसके बराबर में ही आपको इसकी ट्रांसलिट्रेशन दी हुई है इंग्लिश में, अमारा। तो इस ट्रांसलिट्रेशन से पता लग जाएगा हमें कि भाई इस पर सबको पता लगी हुई है, अमारा, लाइक फ़अला अमारा, ये। ठीक है। तो और ये ध्यान रखना है कि आपको फर्स्ट अकरेंस फोकस करनी है, क्योंकि इसी सेम वर्ड की एक से ज़्यादा अकरेंस हो सकती है, बट यू हैव टू, द पास्ट टेंस विल बी द फर्स्ट अकरेंस। तो फर्स्ट अकरेंस जो भी मिला आपको डिक्शनरी में, दैट इज योर पास्ट टेंस। तो ये सब हमने पास्ट टेंस को जो है वो जो हम लर्न कर रहे थे वहाँ हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया था। ठीक है। तो ये तो था हमारा सारा रिवीजन। आज हम चलते हैं और देखते हैं कि भाई प्रेजेंट टेंस एक्टिव वर्ब को हम कैसे डिक्शनरी में फाइंड आउट करेंगे और किस तरह से उसकी जो है मीनिंग निकालेंगे। तो फाइंडिंग दी प्रेजेंट टेंस वर्ब इन डिक्शनरी। ठीक है। तो स्टेप वन, स्टार्ट बिल्कुल उसी तरह लेना है आपने, लोकेट द रूट लेटर्स,
वही सब कुछ आपने एडिशन लाइक प्रीफिक्स सफिक्स सब निकाल देनी है। फर्स्ट कर लो यकतुबू है, अब तो आपने या को हटा देना है, ठीक है, तो कताबा मिल गया, या आपको मिल या फिर यकतुबना है ये, तो या हटा देना है, नून जबरना हटा देना है, बीच का आपने रूट लेटर निकालना है। यू शुड नो एज वी हैव डन मेनी टाइम नाउ, राइट, कि कहाँ पे एडिशन हैं, तो उन सारी एडिशंस को आपने रिमूव कर देना है। तो word in the Hansford dictionary are arranged alphabetically. We know that the first occurrence of a word with a specific is a past tense verb. ठीक है, पहला काम तो ये मिल गया आपको, आपने तमाम एडिशन रिमूव किया, रूट लेटर्स निकाले, जाके डिक्शनरी में देखा, तो फर्स्ट अकरेंस जो मिली वो तो था पास्ट टेंस। ठीक है, उसके बराबर में आपको मिलेगी उसकी ट्रांसलिटरेशन। सही है, तो पास्ट टेंस मिला पहले आपको, फिर मिली आपको ट्रांसलिटरेशन, और थर्ड चीज आपको मिलेगी एक मार्कर, या तो ए लिखा हुआ होगा या यू लिखा हुआ होगा ट्रांसलेशन के बाद, लाइक जहाँ भी ट्रांसलेशन, लेट मी गो बैक हियर, राइट, इसके बाद आपको क्या मिलेगा, देखिए ये देखिए यहाँ यू लिखा हुआ है, सो पास्ट टेंस, ट्रांसलिटरेशन, और उसके बाद एक मार्कर होगा, या तो यू लिखा हुआ होगा, या ए लिखा हुआ होगा, या आई लिखा हुआ होगा, इन तीन में से कोई एक होगा, या तो ए या यू या आई। ठीक है, तो अगर ए लिखा हुआ है तो ए का मतलब है फतहा। अभी ये फतह करेगी क्या, मैं आपको बताता हूँ अभी, बट ए का मतलब है फतह, लाइक आ, ठीक है ना, फतह। ऊ, यू का मतलब है ऊ, इस तरह पढ़ लें, ऊ, ऊ मीन्स दम्मा, ठीक है ना, ऊ पेश। और ई, इसको आई नहीं, इसको ई पढ़ लीजिएगा, ई मीन्स कसरा, या आई पढ़ लें तो कसरा। तो ये आपको बताओ कि ए का मतलब है फतहा, यू का मतलब या ऊ का मतलब दम्मा, यू का मतलब, और आई का मतलब है कसरा। ठीक है, इन तीन में से कोई एक मार्कर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसलिट्रेशन के फौरन बाद जो भी ट्रांसलिट्रेशन है उसके फौरन बाद या तो यू लिखा हुआ होगा, या ए लिखा हुआ होगा, या आई। यू मीन्स ऊ, ए मीन्स आ, लाइक जबर, एंड आई मीन्स ई, लाइक कसरा। ठीक है, अच्छा अब ये है क्या मतलब, तो ये मार्कर जो है ये इंडिकेट करता है वाविल साउंड ऑफ आइन कलमा इन द प्रेजेंट टेंस। यानी जो प्रेजेंट टेंस होगा आपका, लाइक यफ़अलू, यफ़इलू, या यफ़अलू, ठीक है ना, तीन में से एक हो सकता है ना, लाइक यफ़अलू, यफ़इलू, यफ़अलू। तो ये जो बता रहा है आपको ये मार्कर, ये आइन कलमे की हरकत बता रहा है कि आइन कलमे पे क्या है, कौन सा वावल है, क्या आइन कलमे पे फतह है। अगर ए लिखा हुआ है ट्रांसलिट्रेशन के बाद, तो इसका मतलब है कि आइन कलमे पे फतह है, यानी कि पैटर्न क्या है, यफ़अलू। अच्छा, अगर ट्रांसलिट्रेशन के बाद यू लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आइन कलमे पे दम्मा है, यानी कि यफ़उलू, यकरुमु, ये वाला पैटर्न होगा। ठीक है, और अगर आई लिखा हुआ है उसके बाद ट्रांसलिट्रेशन के बाद, तो इसका मतलब है कि आइन कलमे पे कसरा है, लाइक यफ़इलू। तो बेसिकली जो मार्कर है वो मार्कर हमें प्रेजेंट टेंस के आइन कलमे के ऊपर जो हरकत होगी वो बताएगा, वो बता रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि जब आपको ये मिल गया कि भाई आ या ई, तो फिर आपने क्या करना है, उसको मैंने खैर पीछे एक्सप्लेन कर दिया। तो प्लेस द रूट लेटर्स ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट टेंस पैटर्न। तो अगर आ लिखा हुआ है या ए लिखा हुआ है, तो आपने यफ़अलू वाला पैटर्न इस्तेमाल करना है, और जो भी रूट लेटर्स हैं बोले काताबा, सामिया, जो भी हैं, राइट, ठीक है ना, नज़ारा, नसारा, तो आपने इस वाले पैटर्न पे रखना है उसको, क्योंकि आपने आइन कलमे पे फतहा, क्योंकि ए लिखा हुआ है, ए का मतलब है आइन कलमे पे फतहा आएगी। लेकिन अगर वहाँ पे आई आई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आइन कलमे पे कसरा आएगी, तो फिर आपने ये वाला पैटर्न इस्तेमाल करना है। जो भी वर्ब है आपकी, उसके जो रूट लेटर्स हैं वो इस पैटर्न पे रखे हैं, लाइक यफ़इलू। ठीक है ना, अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और अगर यू लिखा हुआ है, तो फिर इसका मतलब है आइन कलमे पे दम्मा है, तो आपने फिर ये वाला पैटर्न इस्तेमाल करना है, यफ़उलू। क्लियर। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, एंड फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब आपके पास एग्जांपल क्या है कि दाखला, ये फर्स्ट कर लें, हमने सारे एडिशन निकाल दिए, सब कुछ रिमूव कर दिया। ठीक है, या फर्स्ट कर लें ये वर्ड है या दुखुलू, ठीक है ना, अब ये, अब इसको आपने डिक्शनरी में जो है वो समझना है या फाइंड आउट करना है। तो आपने क्या किया, आपने या को रिमूव कर दिया, दाल खा लाम मिल गया, दाखला मिल गया आपको। तो अब दखला को आप जाके ज़रा डिक्शनरी में देखें, यू है मार्कर इसमें। मार्कर यू लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रांसलेशन के बाद, ठीक है ना, दाखला पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के बाद फिर आपकी जो है वो ट्रांसलिटरेशन, उसके बाद यू लिखा हुआ है। तो देखें डिक्शनरी मार्कर यू, तो यू का मतलब क्या हुआ कि जो आपका आइन कलमा है उस पर दम्मा लगानी है, तो यानी कि आपने ये वाला पैटर्न इस्तेमाल करना है, या फुलू, आइन कलमा पे तो दम्मा आएगी, यू तो मीन्स ऊ, ठीक है ना। दखुलू हो जाएगा इसमें। नहीं, प्रेजेंट में तो फिर आपको या भी लगा, नहीं ये, हाँ सॉरी, हाँ, इसमें ठीक ये है ना, ये ये, आपने ये आपने दखुल हो हाँ जाएगा। देखें यफ, ये है आपका पैटर्न यफ, ये बता रहा है आपको कि आपने पैटर्न यूज करना है यफ उलू, क्योंकि यू का हाँ मतलब है आपने
दम्मा इस्तेमाल करनी है। अब आपके रूट लेटर्स कौन है, दाल खा लाम। तो फा कलमा की जगह आ गया दाल, आइन कलमा की जगह आ गया खा, ठीक है, और लाम कलमा तो लाम कलमा ही है, यानी बन पास्ट गया। टेंस में दखुला होगा फिर ये, नहीं नहीं, क्यों पास में दखुला क्यों होगा? क्योंकि अ, नहीं नहीं, अच्छा नहीं, हम सॉरी, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मैं इसको वो हो रहा हूँ। देखें, ये यू जो है ना, ये प्रेजेंट हम्म, टेंस का मार्कर है, ये पास्ट टेंस का मार्कर नहीं है ये। अच्छा, पास प्रेजेंट तो हो गया। पास तो हम्म, ये रहा पास दाखला। ये हम्म। पास बताएगा आपको क्या, ट्रांसलिटरेशन। ये देखें, ये बता रहा है आपको पास्ट टेंस के हरकत, लाइक दाल पे क्या है, खा पे क्या है, लाम पे क्या है, दा खाला। तो ये बता दिया, इसने बता दिया आपको कि दाखला बेसिकली दाखला ही है, ठीक है ना। समझ गया, जब बात प्रेजेंट टेंस में करेंगे तो फिर वो एन हाँ, कलमा के ऊपर जो है ना वो दम आ जाएगा। एन कलमा पे दम, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो ट्रांसलिटरेशन से मिलेगी आपको पास्ट टेंस के एराब या हरकत, और ये मार्कर से मिलेगी आपको कि जो आपका प्रेजेंट टेंस होगा, उस प्रेजेंट टेंस के आइन कलमे पे दम्मा होगी। ये यू बता रहा है कि प्रेजेंट टेंस के आइन कलमे पे दम्मा होगी, और बाकियों पे क्या होगा। बाकी सिंपल है, देखें ना, बाकी ये तीन पैटर्न है। लाइक देखें, या पे तो फतह ही रहती है, सही है। फा कलमा पे हमेशा सुकून रहता है, लाइक यफ आलू यद, यू नो दैट राइट, पीछे हमने कितने सारे किए हैं। और लास्ट वाले पे दम्मा होती है, लाइक जो प्रेजेंट, वो जो फर्स्ट वाला ही वाला सीगा, उस पे लाम कलमे पे हमेशा दम्मा ही रहेगी, चाहे कुछ भी ले लें आप। लाइक समिया समिया यसमाऊ, ठीक है ना, यसमाऊ। तो क्या होता है, या पे हमेशा फतह मिलती है आपको, फा कलमे पे सुकून होता है, और आइन कलमे पे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, राइट। और लास्ट वाले पे लाम कलमे पे दम्मा होती है। तो ये तो फिक्स है, लाइक या पे फिक्स है हरकत, सीन पे या फा कलमे पे फिक्स है, आइन पे फिक्स है। सिर्फ जो बीच का जो आइन, सॉरी लाम कलमा है, सॉरी आइन कलमा है, वहां पे चेंजेस हैं, ठीक है। तो वो आ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, या ओ भी हो सकता है। इन तीन में से कोई सी एक चीज होगी ना वो, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे इसको दोबारा मिटाऊं तो ये तीन पैटर्न है, इन तीन पैटर्न के अलावा कुछ और कुछ नहीं होगा। इन तीन में से कोई सा एक पैटर्न बनेगा। अब देखिए, सब कुछ फिक्स है, या, फा और ये लाम, देखिए तीनों में सब कुछ एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ आइन कलमे की हरकत चेंज हो रही है। तो ये यू या ये जो आपको बता रहा है ना, ये आपको बता रहा है कि आइन कलमे पे क्या लगाना है आपने, और बाकी सब कुछ तो एज इट इज वही रहेगा ना, ठीक है। तो अब देखें, दोबारा से इसको यहाँ पर आ जाते हैं, क्लियर। तो दखला से आपको मिला यू, तो यू बता रहा है आपको कि जो मिडिल रूट लेटर है उस पर दम्मा लगानी है आपने, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस कैसे बनेगा, अब दम्मा का मतलब क्या है कि आपने ये वाला पैटर्न यूज करना है, यफ़उलु, क्योंकि ये आपको आपको यू का मतलब है कि आइन कलमे पे दम्मा है। तो अब यफ़उलु लिखें, और यफ़उलु के अंदर आपके जो रूट लेटर्स थे वो दाल खा और लाम थे, इनको रिप्लेस करें, यफ़उलु। तो देखें, फा की जगह आ गया दाल, ठीक है, और फा कलमे पे सुकून होता है, तो दाल फा कलमा है सुकून। और आइन कलमे पे दम्मा है, क्योंकि हमने मार्कर से पहचाना है कि आइन कलमे पे दम्मा आएगी, तो खा पे दम्मा आ गई। और लास्ट वाला लाम है, तो लाम लाम ऐसी कैसी रहा, यदखुलू। तो यफ़उलू से बन गया यदखुलू। तो यदखुलू है दखला का प्रेजेंट, दखला यदखुलू, दखला पास्ट, यदखुलू प्रेजेंट। तो यहाँ से पता लगा आपको कि भाई आपका ये दखला यदखलू नहीं है, यदखिलू नहीं है, यदखुलू है। तो ये आप इस तरह से डिक्शनरी से फाइंड आउट करेंगे। अभी और एग्जाम्पल करते हैं और क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, स्टेप्स टू फाइंड द प्रेजेंट टेंस, लोकेट द रूट लेटर्स इन द डिक्शनरी, जस्ट समरी। फर्स्ट occurrence इज द पास्ट टेंस, नोट द ट्रांसलिटरेशन विद वॉवल्स एंड द मार्कर्स, ठीक है। जो ट्रांसलिटरेशन है वो आपको बताएगी पास्ट टेंस के वॉवल्स, और जो मार्कर है यानी कि ए यू या आई, ये आपको बताएगा प्रेजेंट टेंस के आइन कलमे के हरकत। तो अगर आई है तो ये फ़ईलु बनाना है आपने, या फ़ीलु का पैटर्न यूज़ करना है। अगर ए है तो यफ़अलु का पैटर्न, और अगर यू है तो यफ़उलु का पैटर्न यूज़ करना है आपने, ठीक है। और इसकी मदद से फिर आप अपना प्रेजेंट टेंस का वर्ब बना लेंगे, ठीक है, क्लियर। एक एग्जांपल और दूं मैं आपको, तमिया की ले लें एग्जांपल, है सीन मीम आइन। अब इसका मुझे बताइए डिक्शनरी क्या दे रही है आपको, इसका प्रेजेंट टेंस कैसे कैसे बनाएंगे, समिया। इसको जरा देखें डिक्शनरी में, इसका इसका ए है, हाँ। ए है, ठीक है ना। अब आपको हाँ, ए मिला, ठीक है। तो अब देखें, ए मिला, इसका मतलब ये हुआ कि आपने, ए का मतलब है फतह, आइन करने में फतह है, तो आपने यफ़अलु वाला पैटर्न लगाना है। तो यस्माऊ हो जाएगा। यस्माउ, बिल्कुल ठीक है। तो समिया से बनाया आपने यस्माउ, क्यों यस्मिउ क्यों नहीं, यस्मुउ क्यों नहीं, क्योंकि डिक्शनरी आपको कह रही है कि आइन कलमे पे आपने फतहा लगानी है, ठीक है। समिया यस्माउ, तो यह फॉलो का पैटर्न लगा दिया आपने।
आगे बात समझ में? ठीक है। ठीक है। करुमा को देखें, करुमा, पहले करुमा को भी छोड़ें, दराबा देखें, दराबा का देखें, दराबा। दराबा का बताएं मुझे कि आइन कलमे पे क्या क्या लगाना है। दराबा में एन कलमा पे कसरा लगेगा। कसरा कसरा लगेगा। बजा, क्या मार्कर क्या लिखा हुआ, क्या उस लिखा पे हुआ है? आई है मार्कर। आई लिखा हुआ है मार्कर, ठीक है ना। तो ट्रांसलिट्रेशन के बाद आई मार्कर लिखा हुआ है। तो आई का मतलब है कसरा, कसरा का मतलब है तो यफ़इल, आइन कलमे पे तो कसरा, यफ़इल, तो तो ये दराबा तो रिबू हो जाएगा ये। यदरिबू। बिल्कुल ठीक है, दराबा यदरिबू होता है, दराबा यदरिबू। तो ये जनाब डिक्शनरी से आपने इस तरह से फाइंड आउट करना है। अगर आपको याद भी नहीं है, मतलब वोकेबलरी इंशाल्लाह हम बना रहे हैं, लेकिन अगर आपको याद भी नहीं है तो आप डिक्शनरी से बड़े आराम से पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस इसका क्या है, पास्ट टेंस का। तो अब हम लर्न करते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स, वर्ब्स के डिफरेंट ग्रुप्स। ग्रुप मीन्स अबवाब, ठीक है, बाप की जमा है अबवाब। तो कैटेगराइजिंग वर्ब्स इनटू 6 ग्रुप्स। तो पहले तो अबवाब देखते हैं कि अबवाब है क्या, ग्रुप्स है क्या, और फिर जो 6 ग्रुप बन सकते हैं उनको बारी बारी अंडरस्टैंड करते हैं। So the abwab in Arabic refer to specific patterns of trilateral verb. Trilateral means aslasiyul mujarrad. Sulasi means tri, ठीक है ना, lateral, and mujarrad like stripped. So stripped means like just three root letter word like kataba, dakhala, daraba, ठीक है ना। ये सब के सब trilateral verbs हैं। तो अबवाब जो हैं या आपके ग्रुप्स, ये ट्राइलेटरल वर्ब्स के स्पेसिफिक पैटर्न्स को रेफर करते हैं, ठीक है। दैट डिफाइन हाउ द वर्ब कॉन्जुगेट इन डिफरेंट टेंसेस। और के यानी कि आपने किस तरह से उन्हें कॉन्जुगेट करना है, लाइक यफालू यूज़ करना है, या फिलू या फोलू, कैसे है। तो इनकी इनको इनको ग्रुपिंग करके हम जो है वो उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो वो जो ग्रुपिंग जो है वो बेसिकली अबवाब या उसको हम अबवाब जो है वो कहते हैं, या बाब कहते हैं, 6 बाब हैं वो। So understanding the above helps predict how the conjugate verbs and identify pattern of the meaning। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा कि आप प्रिडिक्ट कर लेंगे कि भाई अच्छा ये इस पे आइन कलमे पे दम्मा आएगी, बगैर डिक्शनरी में जाते हुए। आप उन इन अबवाब की मदद से इट इट हेल्प यू टू प्रिडिक्ट कि आइन कलमे पे फतह है, दम्मा है, कसरा है, क्या है। ये आपको हेल्प करेगी। ठीक है, कैसे, उसको अभी हम देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू अबवाब। तो सो फार, अच्छा देखें ये पूरा reinforcement है। वी नो दैट वी हैव लुक्ड एट द वर्ब्स हैविंग 3 रूट लेटर्स लाइक हुरूफुल असलिया, लाइक वो फ़अला, दखला, ठीक है ना, विदाउट एनी एडिशन। तो विदाउट एनी एडिशनल लेटर वी नो दैट जो 3 रूट लेटर्स होते हैं वो आपके असुलासी मुजर्रद होते हैं, या ट्राइलेटरल वर्ब्स उसको हम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, फ़ेले मादी में जो वो 3 रूट लेटर होते हैं उनके 3 औजान हो सकते हैं, ठीक है ना, और या 3 तरह के वजन हो सकते हैं या पैटर्न हो सकते हैं, लाइक आइदर इट कैन बी फ़अला और फ़ाइला, और सेम थिंग राइट, और आइन पास्ट के अंदर भी आइन कलमे पे फतह भी हो सकती है, कसरा भी हो सकती है, दम्मा भी। लेकिन जो फ़ा कलमा हमेशा फतह के साथ, लाम कलमा हमेशा फतह के साथ, आइन कलमा पास्ट टेंस में वेदर इट विल हैव अ फतह, दम्मा और कसरा। क्लियर। तो ये 3 केसेस हो सकते हैं पास्ट के अंदर, ये 3 वजन या औजान हो सकते हैं पास्ट में। तो फ़ा एंड लाम कलमा ऑलवेज मफ्तू, मफ्तू मीन्स द वन दैट हैज़ फतह ऑन इट, ठीक है ना, एंड विच ओनली लीव आइन कलमा, एंड आइन कलमा has all those 3 different हरकत लाइक फतह, दम्मा एंड कसरा। सेम थिंग फ़ेले मुदारे में भी है, राइट, कि फ़ेले मुदारे में भी जो आइन कलमा है वो या फतह भी ले सकता है, कसरा भी ले सकता है, एंड दम्मा भी ले सकता है, ठीक है ना। लेकिन उसके अलावा फ़ा पे हमेशा सुकून मिलेगा आपको, ठीक है ना, फ़ा विल ऑलवेज बी साकिन। लाम कलमे पे जो फर्स्ट ही वाला केस है उसके अंदर लाम पे दम्मा है, बाकी फिर वो आनी ऊना जो भी ऐड हो रहा है, ठीक है ना, वो तो डुअर है। लेकिन हम अगर फर्स्ट केस की बात करें लाइक ही की, तो लाम पे आपको दम्मा मिलेगा, और उससे बोलते हैं मदमूम। ऐसा ऐसा लेटर जो कि जिस पे दम्मा हो उसे मदमूम कहते हैं, ऐसा लेटर जिस पे फतह हो उसको मफ्तू, और ऐसा लेटर जिस पे कसरा हो उसको मकसूर। ये एक अलग टर्मोलॉजी है, बट या सो विच अगेन ओनली लीव आइन कलमा, ठीक है। तो दोनों के केस में फेले मादी में भी आइन कलमे पे फतह, दम्मा, कसरा हो सकती है, और फेले मुदारे में भी आइन कलमे पे फतह, दम्मा, कसरा, ठीक है ना। अब ये जो कम्बिनेशन बन रहा है लाइक ये 3 का ये कम्बिनेशन, ठीक है, 3 का ये कम्बिनेशन, तो अब इससे हमारे कितने कम्बिनेशन या ग्रुप बन सकते हैं, बेसिकली ये हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। उनको हम बोल रहे हैं अबवाब। तो लेट्स सी हाउ मेनी डिफरेंट ग्रुप्स या कम्बिनेशन वी कैन फॉर्म, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस हरका जो हमने पढ़ी है अभी आइन कलमे के ऊपर, मादी के अंदर फ़ाला, फ़ाउला, फ़ाइला, और मुदारे में या फ़ालू या फ़ईलू या फ़ुउलू, इसमें 6 कम्बिनेशन बन सकते हैं। तो 6 कम्बिनेशन आर यूज टू कैटेगराइज द वर्ब इनटू 6 ग्रुप्स या 6 अबवाब। ठीक है, अब देखें वो कैसे कैसे बन सकते हैं। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब ये इस वाले को पहले देखिएगा, मैं ये जो आपका राइट साइड पर है ये इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहले इसको स्टडी करते हैं हम। तो इसमें देखें आपका जो ये आपका मादी है,
और फिर दूसरा वाला ये कॉलम ये मुदारे है, ठीक है। तो मादी में देखें आपके पास फ़ाला है, तो फ़ाला के साथ आपका यफ़उलु भी हो सकता है, ठीक है ना, लाइक आइन कलमे पे दम्मा भी हो सकती है। फ़ाला के साथ यफ़इलु भी हो सकता है, लाइक अगर एक वर्ब है फ़ाला के पैटर्न पर, तो फ़ाला का फ़ेल मुदारे यफ़अलु भी हो सकता है, यफ़इलु भी हो सकता है, और यफ़उलु भी हो सकता है, ठीक है, तीन केस। तो अगर आपकी फ़ाला के पैटर्न पर एक पास्ट टेंस है, लाइक दराबा, ठीक है ना, ज़हाबा, नसारा, ये तो पास हो गया। तो इसका प्रेजेंट जो है मुदारे वो यफ़उलु भी हो सकता है, यफ़इलु भी हो सकता है, यफ़अलु भी हो सकता है, ठीक है ना। तीन तो ये ग्रुप बन गए, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो फ़ाला के अगर अगर पास्ट फ़ाला है तो, अच्छा अगर पास्ट है फ़ाइला, तो फ़ाइला के साथ दो केस बनते हैं। तो अगर ये फ़ाइला है तो फ़ाइला के साथ प्रेजेंट में यफ़अलु हो सकता है या यफ़इलु, यफ़उलु नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका पास्ट फ़ाइला है तो प्रेजेंट में या मुजारे में यफ़अलु और यफ़इलु होगा, यफ़उलु नहीं होगा। फ़ाउला का प्रेजेंट यफ़अलु कभी नहीं होगा, फ़ाउला का कभी यफ़इलु नहीं होगा। जैसे अब करूमा है, अगर मैं बोलूँ भाई करूमा का बताएं, आप करूमा का क्या हो सकता है, तो नाउ यू कैन इजीली टेल मी कि करूमा का यकरुमु बनेगा, क्योंकि करूमा से आपका यकरमू नहीं बन सकता, यकरीमू नहीं, क्योंकि देखा ना ये हमारा हमने ये कैटेगराइज कर दिया। अब इन कैटेगरीज के अंदर सिर्फ आपका जो उसकी पैटर्न जो करूमा पास्ट है आपका दम्मा के साथ, उस दम्मा के अंदर आपका सिर्फ यफउलू ही का पैटर्न मिल रहा है आपको, तो करूमा से यकरुमू ही बनेगा। अब देखें आपको डिक्शनरी में जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता चल गया कि जब फाउला का पैटर्न, अगर फाउला है पास में किसी वर्ब के जो एराब हैं वो फाउला के पैटर्न में, लाइक करूमा, तो या बाऊदा। अब बाऊदा जो है वो हमेशा आपको कहाँ मिलेगा, यबउदू, बाऊदा से बनेगा यबउदू। करूबा, करूबा या कुरूबू, करूबा या कुरबू कभी नहीं होगा, या करीबू कभी तो ये इस तरह से ये बाब जो है ना आपको हेल्प करेंगे मेमोराइजेशन में, ठीक है। तो अगर पास्ट आपका है आइन कलमा फतह के साथ, तो उसके तीन केसेस, लाइक फ़ाला से यफ़उलु भी हो सकता है, यफ़इलु, यफ़उलु भी। अगर आपका पास्ट कसरा के साथ है आइन कलमा फ़ाइला, फ़ाइला, दो केसेस, फ़ाइला से यफ़अलु होगा या यफ़इलु। और आपका जो लास्ट केस है उसका फ़ाउला, तो फ़ाउला से आपका सिर्फ यफ़उलु ही बनेगा, एक ही केस बनेगा, ना तो यफ़अलु बनेगा ना यफ़इलु। तो अगर पास आपका यफ़उला है तो हमेशा यफ़उलु ही बन सकता है, आइन कलमे पे दम्मा ही आएगी। तो अगर पास्ट के आइन कलमे पे दम्मा है तो प्रेजेंट के आइन कलमे पे दम्मा होगी, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान हो गया याद करना। तो ये बन गए छः आपके बाब इस तरह से। तो या तो बनेगा फ़अला यफ़उलु, फ़अला यफ़इलु, फ़अला यफ़अलु, तीन ये बन गए केस। फ़अइला यफ़अलु, फ़अइला यफ़इलु, दो केस ये बन गए। और फ़अउला यफ़उलु, एक ये बन गया। तो ये सिक्स तरह के ग्रुप बन गए, इसके अलावा और कोई कम्बिनेशन नहीं होगा वर्ड्स का। ये है छः छः कम्बिनेशन। और देखिए फिर नेक्स्ट वाले में इनकी एग्जाम्पल दी हुई है। तो अब देखें अगर पास फ़ाला है तो प्रेजेंट यफ़ुलु भी हो सकता है, तो देखें न सौरा, अब पास है ना सौरा, इसका प्रेजेंट होता है यनसुरु, यफ़उलु, ठीक है, राइट, ये हम जानते हैं, लाइक ही हेल्प, वी नो दैट। अच्छा अगर फ़ाला है पास, तो प्रेजेंट यफ़इलु भी हो सकता है, लाइक आइन कलमे पे कसरा भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इसकी एग्जाम्पल है दरबा, तो दरबा है पास्ट और यदरिबु है इसका प्रेजेंट, यदरिबु, तो देखिए रा पे कसरा है, आइन कलमे पे कसरा, या ये यफिलु वाला पैटर्न, ठीक है। तो फ़अला यफ़अलु, फतहा यफ्तहु, फतहा यफ्तहु, ठीक है। ये है एग्जाम्पल आपकी यफ़अलु की, ठीक है। तो अगर आपका मादी फ़ाला के पैटर्न पर है तो फ़ाला से यफ़उलु भी हो सकता है, यफ़इलु भी, यफ़अलु, ये एग्जाम्पल है, नसरा यनसुरु, दरबा यदरिबु, फतह यफ्तहु। अच्छा अगर आपका फ़ाइला है तो फ़ाइला के साथ दो केस बन सकते हैं, फ़ाइला यफ़अलु या फ़ाइला यफ़इलु। तो इसी एग्जाम्पल ये नहीं, समिया, लाइक फ़ाइला, समिया यस्माउ, तो देखिए आपके मादी में आइन कलमे पे कसरा है तो प्रेजेंट में आइन कलमे पे फतह है, यस्माउ। हसीबा, यहाँ पे आपके प्रेजेंट में कसरा है, सॉरी पास्ट में कसरा है आइन कलमे पे, तो या हसीबू, तो इसके आइन कलमे पे कसरा है, ठीक है। तो समिया यस्माउ, हसीबा या हसीबू, दो केस हो गए। इसमें आपका दम्मा आपकी नहीं होती फ़ईला के साथ, लाइक यकरुमु या यफ़उलु नहीं होता। और अगर लास्ट केस क्या है कि अगर आपका फ़ाउला है, ठीक है, तो फ़ाउला अगर है तो उसका सिर्फ यफ़उलु ही बनता है, या फ़ाउलु या फिलु नहीं बनता, तो लाइक करूमा। अब करूमा से आपको डिक्शनरी में जाने की जरूरत ही नहीं है, यू नो यकरुमु होगा इसका, तो करूमा यकरुमु, ये बन गया आपका नंबर सिक्स ग्रुप, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनको याद करने के लिए आपने इन बाब्स का नेम देना है। तो ये आपने ये छः की याद होगा, मैंने शुरू में फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि ये कुछ वर्ब हैं की, इनका आगे इस्तेमाल आएगा, तो ये वो की वर्ब हैं। तो इस बाब का नाम हम देंगे नसौरा, यानी कि कोई सा भी
वर्ब जो इस पैटर्न पर है, लाइक फ़अल यफ़उलु या नसरा यनसुरु, उसको हम नाम देंगे भाई, इस बाब का नाम है नसरा, ये बाब नसरा है। ठीक है, ये हमारे बाब का नाम है ग्रुप का। ठीक है। अच्छा, अगर एक वर्ब इस पैटर्न पर है, फ़अल यफ़इलु, लाइक दरबा यदरिबु, तो उस बाब का नाम है दरबा। ठीक है, उसको हम दरबा से याद करेंगे। और अगर एक पैटर्न है आपका फ़अल यफ़अलु, यानी कि फॉर एग्जांपल फ़तह यफ़तहु, तो आपने उस बाब को नेम देना है फ़तह, कि ये बाब फ़तह है। ठीक है। अच्छा, अगर एक है फ़इला यफ़अलु, लाइक समीअ यस्माउ, तो इस पैटर्न की तमाम वर्ब को हम बोलेंगे भाई ये बाब समिया से ताल्लुक़ रखती हैं। ठीक है, बिलोंग करती हैं। अच्छा, या फ़ाइला यफ़इलु है, फॉर एग्जांपल हसीब यासिबु, तो ये तमाम वर्ब इस पैटर्न वाली, ये बाब हसीबा से बिलोंग करती हैं, तो ये हमने इस बाब का नाम दे दिया हसीबा, अपनी मेमोरी याद करने के लिए ना, मेमोराइजेशन में memory। और फ़ाउल या फ़ुलू है, अगर इस पैटर्न की वर्ब्स हैं, लाइक करूमा बाऊदा करूबा, फॉर एग्जांपल करूमा या करूमू, तो इस बाब का नाम है करूमा, कि भाई ये इस तरह की वर्ब करूमा। लेट्स फर्स्ट कर लें बाऊदा, मैंने बोला भाई ये बाऊदा, फॉर एग्जांपल है ना, बाऊदा यबउदु, मैं आपसे पूछूं भाई ये कौन से बाब से बिलोंग करती है ये, तो आप देखें बाऊदा यबउदु फ़ाउला यफ़उलु, ये बाब करूमा है। ठीक है ना, क्योंकि देखें करूमा या कुरुमु, फ़ाउला या फ़उलु, तो दोनों के आइन कलमे पे दम्मा है, तो ये बाब करूमा है। तो आपने इस तरह से मेमोरी में इसको इन्फोर्स करना है। ठीक है, तो ये 6 बाब आपने याद करने हैं, कि इस तरह का कम्बिनेशन अगर है, फ़अल यफ़उलु नसरा यनसुर, बाब नसरा है ये। फ़अल यफ़इलु दरबा यदरिबु, बाब दरबा है। फ़अल यफ़अलु फ़तह यफ़तहु, ये एग्जाम्पल भी याद रखिए, ये एग्जाम्पल अपनी याद रखनी है। फ़तह यफ़तहु, फ़तह बाब से बिलोंग करती है। फर्स्ट पहले मैं बोलूँ भाई फ़तह बाब है, ठीक है ना, तो फ़तह का बाब का मतलब क्या है, फ़तह यफ़तहु, ये जो आपका प्रेजेंट है उसमें आपके आइन के में फ़तह है। ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ कि भाई ये एक वर्ब दरबा बाब से बिलोंग करती है, तो आपको याद हो दरबा यदरिबु, तो अगर दरबा यदरिबु है, तो इसका मतलब है वो वर्ब जो है वो इस पैटर्न पे होगी। बात समझ में आ रही है, इस तरह से मतलब ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नसरा यनसुरु, ये पक्के आपको, ये तो इनको आपको याद हो, इनका पास्ट और प्रेजेंट आपको याद हो। नसरा यनसुरु दरब यदरिबु हसीब यहसीबु फतह यफ्तहु करुम यकरुम समिया यस्माउ, ये सब आपको याद हो। और मैं अगर आप ऐसे बोलूँ कि भाई ये एक वर्ब है, ये समिया पैटर्न पे बिलोंग करती है या समिया बाप से बिलोंग करती है, तो समिया से आपके ध्यान में क्लिक करे समिया यस्मा, समिया यस्माउ, तो यानी कि वो वर्ब भी आपका इसी पैटर्न पे फॉलो करेगी। ठीक है। अब इससे कोई एग्जाम्पल करते हैं, तो इससे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स से स्टेप्स, ठीक है, स्टेप से देखते हैं हम। तो फर्स्ट क्या है, कैसे कैसे हम कैटेगराइज करें वर्ब को, तो आइडेंटिफाई द रूट लेटर्स, जो भी वर्ब है उसके रूट लेटर फाइंड। फॉर एग्जांपल आपकी एक वर्ब है यकतुबु, तो कतबा उसके रूट लेटर होगा। ठीक है ना, तो फ्रॉम द वर्ब कतबा द रूट लेटर्स आर काफ ता और बा, ये आपको मिल गए। पहला स्टेप तो ये हो गया कि आपने रूट लेटर्स निकाल लिए। नाउ चेक द पास्ट टेंस पैटर्न, तो डज द वर्ब फॉलो फ़अला फ़अइला फ़अउला। ठीक है, क्या फॉलो करते हो, अब डिक्शनरी में गए, डिक्शनरी में जाके आपने जो है वो इसका देखा इसकी ट्रांसलिट्रेशन, कि भाई ये काताबा जो है ये काफ्ताबा, ये फ़ाला का पैटर्न जो है वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। नाउ लुक एट द प्रेजेंट टेंस वॉवल पैटर्न, फिर डिक्शनरी से आपने चेक किया, तो डिक्शनरी में वो जो मार्कर है यू आई और आपका ए, वो क्या दे रहा है आपको, वो कौन सा पैटर्न दे रहा है आपको, या फॉलो को दे रहा है या फिलू को, या फुलू क्या दे रहा है। ठीक है, आपने वो निकाल लिया, तो वो में हाल यू होगा, यकतुबू होगा शायद। तो आपसे डिक्शनरी से आपको क्या मिला, कि का ता और बा, ये इसका पास्ट टेंस फाला का पैटर्न पर है, लाइक काताबा, और इसका जो प्रेजेंट है वो इस पैटर्न पर है, लाइक वहाँ पे यू लिखा हुआ होगा, तो यू से फिर आपने यफूलू बना दी, तो यानी कि ये काफ ताबा जो है वो इस पैटर्न से बिलोंग, लाइक फ़ाला या फ़ुलू। ठीक है। अब फ़ाल या फ़ुलू, आपको पता हो कि फ़ाल या फ़ुलू जो है वो बाब नसरा है, लाइक नसरा यनसुरु, ये एग्जाम्पल आपके देने पक्की हो। ठीक है ना, फ़ाल या फ़ुलू नसरा यनसुरु, तो ये काफ ता बाब जो है, ये भी किससे बिलोंग करती है, बाब नसरा से बिलोंग करती है। जिस तरह नसरा यंसुरु है, तो ये बन जाएगा कतब या कुतुबु। तो आप इस तरह से इसको आप कैटेगराइज करेंगे या मर्ज करेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका कतबा बाब नसरा से बिलोंग करती है। तो बाब नसरा क्या था, बाब नसरा था नसारा यंसुरु, पास्ट और प्रेजेंट, नसरा यंसुरु, तो कतबा यकतुबु बन जाएगा। तो इस तरह से फिर आपको ये हेल्प करेगा ये बनाने के लिए इजीली। ठीक है।
तो कुछ और एग्जांपल चलिए यहाँ से लेते हैं डिक्शनरी से। अच्छा, अभी सारा होमवर्क मैं पीछे दे चुका हूँ आपको ना, सारी वर्ड्स। तो लेट्स कैटेगराइज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू देयर रेस्पेक्टिव अबवाब। अब आपने बताना है कि इसका ये किस बाब से बिलोंग करती है कफरा। तो अब इससे पहले तो आप इसको, इसके लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। डिक्शनरी में जाकर देखें, इसकी ट्रांसलिट्रेशन देखें, बाकी ट्रांसलिट्रेशन तो दी हुई है कफरा। डिक्शनरी में देखें मार्कर क्या दिया हुआ है। तो कफरा का पैटर्न क्या है? कफरा का पैटर्न है आपका फ़ाअला। ठीक है ना, लाइक कफरा फ़ाअला। कफारा का जो मार्कर है वो आई है। आइए, तो यानी कि यफ़इलु। ठीक है ना, फैलू, हाँ फैलू तो ये हो जाएगा फिर। यफ़इलु। नहीं, हसेबू वाला नहीं। फत हसी वो था दराबा यदरिबु है ये। फ़अला ये यफ़इलु दराबा। हसीबा, हसीबा में तो अच्छा फिर अच्छा सीन पे आइन कलमे पे कसरा आ गई ना। लाइक ये, अच्छा। वो तो फ़ाइला हो गया, हसीबा हो गया फ़ाइला। है ना। तो हमें हम्म। ये है फ़अला यफ़इलु, लाइक दराबा यदरिबु। रा पे ओ, कसरा था, है ना, और रा पे ये पहला वाला है, ये दरावाद। दराबा ओके। यदरिबु। तो ये कफरा का बाब, कफरा बिलोंग करता है बाब दराबा से। ये आपने लिखना है, समझ गए? ओके। दराबा यदरिबु कफरा यकफिरु, ये बनेगा इसका। आई लिखा हुआ है ना, आई दिया हुआ है ना। हाँ आइए। हाँ, तो कफरा से यकफिरु बनेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि फ़अल या फ़इलु दराबा यदरिबु, ये इसका बाब है। तो कफरा के सामने अगर आपने ये लिख दिया, ये बाब दराबा से बिलोंग करता है, तो आप समझ जाएं कि अच्छा ये दराबा से बिलोंग करता है, तो दराबा यदरिबु था, तो कफरा यकफिरु होगा। यानी कि आपको उसका मुदारे इस तरह से याद हो जाएगा आपको। ठीक है। जाला का बताइए ज़रा, जाला का क्या मार्कर दिया हुआ है? तो जाला से तो बन गया फ़ाअला, ठीक है, ये तो पास्ट है। मार्कर क्या दिया हुआ डिक्शनरी में जाला के लिए? फतह। इसका ए है ये मार्कर। है फतह। तो फतह यानी कि आइन कलमे में फतह आएगी मुदारे में, तो यफ़अलु। ठीक है। तो फ़अल यफ़अलु, क्या हमने बाप दिया था या फ़अल यफ़अलु को? हमने दिया था फतह यफ्तहु, ठीक है ना, फतह यफ्तहु। तो ये आता है। जाला बिलोंग करता है फतह बाप से। तो जिस तरह फतह यफ्तहु था, जाल यजालु होगा। ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको यानी कि मेमोरी में बिठाना है। तो जाला है फतह बाप से, जाल यजालु फतह यफ्तहु। ठीक है ना, कफर यकफिरु दरब यदरिबु। तो यानी कि आपको बार बार डिक्शनरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह से आप मेमोराइज कर लेंगे फिर आप। ठीक है, ज़ोलामा। बल्कि इनको छोड़ें, ये सारे फतह वाले हैं। मैं एक और इस करता हूँ इसमें, कोई और निकालते हैं कसरा वाला, शायद देखिए कोई। जलामा का कसरा है ऐसे। अच्छा, जलामा का नहीं, वो पास में भी फतह है ना उससे, तो जलामा का कसरा है। ठीक है, तो ये यानी कि ये वाला पैटर्न बन गया फ़ाल या फ़िलु, लाइक दरबा यदरिब। तो हाँ ज़लमा यस। यज़लिमु, ये भी बाब दरबा से बिलोंग करता है, ठीक है ना। लाइक जिस तरह दरबा यदरिबु है, ज़लमा यज़लिमु, क्योंकि आपका कसरा है इसके अंदर आइन के अंदर। हम्म। ठीक है। एक आध एग्जाम्पल इसमें से देखते हैं, चलें ये देखते हैं बाऊदा। ठीक है। अच्छा, एक नेक्स्ट प्रैक्टिस, कैटेगराइज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू, ये सब मैंने आपको मेमोराइजेशन के लिए दी हुई है। तो अब इनके बाप, पहले तो इनका मुदारे बनाएंगे फिर बाप। ठीक है, तो बाऊदा, जरा बाऊदा को देखें डिक्शनरी में जाके, बा आइन और दाल रूट लेटर्स को। अब ये बाऊदा जो है बेसिकली क्या है, ये फाउला है, ठीक है ना, फाउला के पैटर्न पर है। तो ये तो खैर आसान था, मैंने आपको बता दिया था, इसको याद करना कितना आसान है। तो फाउला से क्या, फाउला का एक ही केस है, फाउला से क्या बनता है? बाउ- बाउदा का यहाँ पर वो यू दिया हुआ है यू दिया हुआ है हाँ। यफ है ना। तो यफ ये यकरूमो वाला हो जाएगा। हाँ, देखा ना, ये अगर आपको ये याद हो, मैंने जो बाप, जब मैं बाप बता रहा था, तो फाउला के पैटर्न पे तो एक ही उसकी मुदारे बनता है या फुलू, उसके तो हम्म, मल्टीपल केसेस है ही नहीं। तो इसको तो याद करने की, डिक्शनरी में देखने की भी जरूरत नहीं है। लाइक आपने देखा हम्म। बाउदा, लाइक फाउला है, तो ये या फुलू ही होगा। तो तो ये बाउदा से बना तो इसका ये मुदारे थे यब यब यूदू यबुतु। यबउदू, ठीक है ना, यफउलू यबउदू। तो ये कौन सा बाब है ये? बाउदा याबुदू, करुमा बाब है ये, ठीक है ना, करुमा। करूँगा करूँ करूँगा। ये मतलब है, ठीक है ना, इस तरह से फाइंड आउट करना। सेम थिंग करूबा। करूबा यानी कि फाउला, फाउला तो का तो एक ही केस है मुदारे में, लाइक फाउला या फुलू। तो करूबा या कुरूबू, डिक्शनरी में जाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो सारे आपको दम्मा वाले विदाउट डिक्शनरी मिल जाएंगे आपको, इनके मुदारे और इनका बाब बहुत ही आसान है। ठीक है, क्लियर। तो ये इस ठीक तरह है। से प्रैक्टिस की कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा सारा ये ना, इंशाल्लाह। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कुछ थोड़ा कुछ और एक्सरसाइज करते हैं और फिर होमवर्क। अच्छा, एक्सरसाइज वही जो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे थे, वही एक्सरसाइज है। तो यहाँ से देखते हैं कोई एक आध। तो कैटेगराइज, ये सारी वर्ड मैं आपको मेमोराइजेशन के लिए दे चुका हूँ, ठीक है। इनके मादी तो आपको याद होने चाहिए। अब हम इनके मुदारे पे काम कर रहे हैं कि इनका मुदारे क्या होगा।
और फिर ये किस बाब से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो लेट मी सी कौन सा, ये भी सारे फतह वाले लग रहे हैं, बासा सहारा फला नफा, कोई सा भी, सारे फतह वाले ही हैं, तो कोई सा भी ले लें, लाना लाना ले लें। तो लाना का जो पैटर्न है वो है फ़ाला, ठीक है ना। इसका ज़रा चेक कीजिएगा, क्या मार्कर लिखा हुआ है डिक्शनरी में। लाना बन गया फ़ाला, इसका मुदारे में क्या मार्कर है? इसका मार्कर ए है। ए है, तो यानी कि ये बन जाएगा तो ये यफ़अल। फाला वाला, हाँ, हाँ, तो इसका लेकिन इसका बाप क्या बनेगा? दरबा फ़अल वाला जो है, यफ़अलु, फ़तह यफ़तहु, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा फतह। फतह फतह वाला। हाँ, फतह बाब इसका, ठीक है ना। तो ये बाब फतह से बिलोंग करता है, और फतह का बाब पक्का आपको याद हो, फतह यफ्तहु, ठीक है। तो लाना यलअनु, फतह यफ्तहु, लाना यलअनु, इस तरह से बनाएंगे इसको आप, ठीक है। चलिए एक और निकालें जरा, बलागा निकालेगा, बलागा। बलागा बन गया भाई फ़ाला। लेकिन ज़्यादातर जो है ना फतह वाली ही है, वो दम्मा वाले तो बहुत कम है। क्या मार्क करे, कसरा फतह दम्मा? दम्मा तो खैर शायद बलागा जब लोग नहीं है। इसका है ये, बालाम, यूए इसका। यही है जब लोग है, ठीक है। तो यफ, हाँ ये, हाँ, तो इसका ज़रा मुझे बाप बैदू से बनाते हैं, यफ़उलु, ठीक है ना। तो फ़ाल यफ़उलु, तो यफ़उलु से क्या बना, यबलुगु। यबलुगु। और बाप क्या, किस बाप से बिलोंग करता है ये? नसरा ये यंसुरु, ठीक है ना। नसर, हाँ, नसर बलगा यंसुर। यबलुगु, नसरा यंसुरु, ठीक है ना। फ़ाल यफ़उलु, तो ये नसरा से यंसुर। बिलोंग करता है। तो ये आपको बाप पक्के याद हो, पाँच जो छः जो है ना, ये तो पक्के याद हो, ठीक है ना। नसरा यंसुरु, फतह यफ्तहु, समिया यस्माउ, दरबा यदरिबु, और आपका कौन सा रहेगा, करुमा यकरुमु, ठीक है। ये सारे आपको पक्के याद है बिल्कुल। और हसीब याहसिब, तो ये पूरे छः हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ये अपनी बाप की आपकी वो इसको इन्फोर्स करनी है आपने, ये सेम वही एक्सरसाइज, ये सारी वर्ब्स आपको याद करने को दी हुई है मैंने, ठीक है ना। अच्छा, तो ये होमवर्क है, होमवर्क क्या है, फाइंडिंग द प्रेजेंट टेंस वर्ब इन डिक्शनरी। अब आपने करना ये है कि कुरान शरीफ इंशाल्लाह खोलना है, जब भी टाइम मिले तो 10 आपने पास्ट टेंस वर्ब फाइंड आउट करनी है कुरान से, ठीक है ना। वो पास्ट टेंस वर्ब का पैटर्न आपको पता है क्या, फ़ाला का पैटर्न है, फ़ाला फ़ाला फ़ालू फ़ालत चाहे वो एडिशन हुई भी हो, डूअर्स ऐड हुआ हो, कोई मसला नहीं है। तो आप वो आपने वर्ब पहचाननी है। अब देखा लिखा फर्क ज़ोलामू लिखा, अब खैर वो तो खैर आपने ऑलरेडी मैंने मेमोराइजेशन के लिए दी हुई है, लाइक ज़ोलामू। अब ज़ोलामू से आपको पता लग गया भाई कि ये पास्ट टेंस है, राइट, क्योंकि शुरू में कोई प्रीफिक्स नहीं है और एंड में वाव ऐड हुआ हो, तो ये पास्ट टेंस है। तो ज़ोलामू आपने एक वर्ड पकड़ ली, उसमें वाव को हटा दिया, रूट लेटर निकाले, ज़ोलामा निकाला आपने, ठीक है ना। फिर ज़ोलामा को जाकर डिक्शनरी में उसका मुदारे देखा कि क्या मार्कर, कौन सा मार्कर दिया हुआ है, ठीक है। तो कुरान से 10 आपने पास्ट टेंस वर्ड निकालनी है, फिर डिक्शनरी से आपने उसका मार्कर फाइंड आउट करके उसका प्रेजेंट बनाना है कि उसका प्रेजेंट क्या है। जैसे एग्जांपल दी हुई है आपने, आपको एक वर्ड मिली है कुरान में कताबा, या अगर उसमें डुअर भी ऐड हुआ है तो 10 हो गए। तो आपने डुअर हटा के मादी निकाला, और फिर उस मादी को जाकर देखा कि वो उसका यकतबा से यकतुबू है, यकतिबू है, यकतबू है, क्या है। तो उसका मार्कर देख के फिर आपने उसका मुदारा निकाल के यहाँ लिख लिया यकतुबू, उसकी मीनिंग भी लिख ली, ठीक है। तो राइट बोथ फॉर्म्स इन अ टेबल, तो ये आपका टेबल हो गया। और फाइंड द रूट लेटर्स हरूफ अल असलिया, ये तो खैर आसानी है बोनस में, कि आप यहाँ से काफ ताबा, ये इसके रूट लेटर है, ठीक है। लाइक जो तीन रूट लेटर्स होते हैं वो, या यकतुबू है अगर, तो यकतुबू में या को हटा के, या आपका प्रीफिक्स है, काफ ताबा आपके क्या है, रूट लेटर्स हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको होमवर्क को कर सकते हैं। नेक्स्ट, अबवाब के लिहाज से पैटर्न कि अब आपने बाब भी बताना है, तो यानी कि जिस तरह से ये प्रीवियस होमवर्क था, समझ लें प्रीवियस होमवर्क का फर्दर एडिशन, कि जब अब मुदारे मिल जाए फिर आप उसका चेक करें दोनों को, कि अब जैसे ये कतबा है और ये यकतुबू है, तो अब ये कौन सा बाब है, कतबा यकतुबू, ठीक है ना, नसरा यंसुरु, तो ये बाब नसरा है। कतबा यकतुबू फ़अल यफ़अलु नसरा यंसुरु, तो नसरा बाब से बिलोंग करता है, तो आपने बाब आगे उसमें ऐड कर देना है कि राइट अ समरी ऑफ। अच्छा हाँ, ये थोड़ी सी एक समरी भी लिखिएगा, राइट अ समरी ऑफ व्हाट अबवाब आर इन योर ओन वर्ड, कि अबवाब क्या हैं, क्या होता है, क्या है अबवाब, ताकि इसको रिव्यू कीजिएगा पहले, लेक्चर को पूरा अच्छी तरह, कोशिश कीजिएगा कि ये ग्रुप्स को समझने की, अबवाब को समझने की, जब ये क्लियर हो जाए तो फिर एक अपने लफ्ज़ में थोड़ा सा एक समरी बना के कि भाई अबवाब ये होते क्या है, क्या है, वो लिख लीजिएगा। आइडेंटिफाई द बाब ऑफ वर्ड फाउंड इन टास्क वन, तो टास्क वन जो पीछे वाली थी, इसमें जो आपने फाइंड आउट किए पहले मुदारे, उनका आपने अब बाब भी लिख लेना है यहाँ पे, इनका बाब क्या है, ठीक है। एक और लास्ट जो होमवर्क है वो है आपका, कैटेगराइज वर्ब्स इनटू 6 ग्रुप, सो फाइंड 6 डिफरेंट वर्ब्स, वन फ्रॉम ईच बाब, ठीक है। अब चाहे वो पीछे जो बहुत सारी आपने याद की हुई है उन्हीं में से कोई कर लें, या तो हर एक डिफरेंट वर्ब आपने फाइंड करनी है हर एक बाब से।
लाइक एक बाब नसरा से, एक बाब दरबा से, एक बाब समिया से, एक बाब फतह से, एक बाब करुमा से, ठीक है ना। तो हर एक एक हसीबा से। तो एक एक उस पैटर्न की एक वर्ब पकड़ें। राइट देयर पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स, उनकी पास्ट और प्रेजेंट लिखें। और एक्सप्लेन करें व्हाई दे बिलोंग टू देयर रिस्पेक्टिव बाब, उससे क्यों बिलोंग करती है। जैसे फर्स्ट कर लें कतुबा, कतबा है, ठीक है? तो कतबा यकतुबु। अब कतबा यकतुबु जो है, ये इसका बाप बन रहा है नसरा। तो ये नसरा से क्यों बिलोंग करती है ये बताना है। तो ये नसरा से इसलिए बिलोंग करती है कि नसरा के अंदर भी आपका आइन कलमा पे फतह है, मादी के। और मुदारे के भी आइन कलमे पे फतह है, लाइक यनसुरु, ठीक है। तो जिस तरह मादी और मुदारे के आइन कलमा पे, सॉरी, मादी मादी पे आपका फतह है नसरा के अंदर, ऐसी कतबा पे फतह लगी हुई है, ठीक है। और यनसुरु में आइन कलमे पे मुदारे के यनसुरु में दम्मा है, तो यकतुबु में भी दम्मा है। तो इसलिए ये इस बाब से बिलोंग करती है, क्योंकि कतबा के आइन कलमे पे फतहा और यकतुबू के आइन कलमे पे धम्मा, सेम चीज़ नसरा में भी यही है। तो इसलिए ये नसरा बाब से बिलोंग करता है। तो ये आपने एक्सप्लेन करना है कि भाई ये दैट्स वाई इट बिलोंग, बेसिकली आइन कलमे के लिहाज से पहचान के आपने बताना है कि भाई ये, हाँ, इस वजह से ये इस बाब से बिलोंग करती है, ठीक है। ट्राई टू गेट द बाब ऑफ न्यू वर्ड्स फ्रॉम द कुरान बिफोर लुकिंग देम अप इन द डिक्शनरी। और अब ये जो इतनी सारी वर्ड आपने याद कर ली हैं, तो अगर कोई एक नई वर्ड मिलती है, ट्राई टू गैस फर्स्ट, राइट, लेट्स सी कि आपका गैस कितने हद तक कामयाब होता है, ठीक है ना। क्योंकि अब मैं आपको बताऊं, करूमा के पैटर्न पे बहुत कम वर्ड है, बहुत ही कम है करूमा के पैटर्न पे। ज़्यादातर पैटर्न जो है वो आपका नसरा यंसुरु मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये तो बहुत मिलेगा नसरा यंसुरु। दरब यज़रिबु भी है, और आपका समी यसमाऊ भी, समी यसमाऊ भी है। लेकिन करूमा यकरुमु बहुत कम है। और फ़ईला वाले पैटर्न की बहुत कम है। फ़ाला वाले पैटर्न की बहुत, लाइक फ़ाला यफ़उलु, फ़ाला यफ़इलु, फ़ाला यफ़उलु, इनकी बहुत ज़्यादा कारण है, ठीक है। तो रिमाइंडर्स में क्या है, होमवर्क आपका लेसन 42 का जो होमवर्क अभी मैंने एक्सप्लेन किया पीछे, उसको कर लीजिएगा इंशाल्लाह, लास्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास से पहले। नेक्स्ट लेसन हमारा February 5 को होगा 8 PM पे। और बस, हाँ, जज़ाकुमुल्लाह खैरन इंशाल्लाह। तो ये मैं दुआ पढ़ लूँ फिर क्लास के लिए कि हम ऑफ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना अव अख़्तअना। रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति आमीन। अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।